So guys, welcome here, and today we are basically coming into the dividend chapter ka summary notes. Yes, the phase 3 we have done the content, we have done the question answers. Now how will we do that particular topic during exams? So for doing that we'll be keeping up a capsule lecture जहाँ पे you will be having the flow charts of the entire topic, and I'll be making you revise the same, and what you have to do is copy the same in your notebooks. You heard it right, copy the same in your notebooks. That will be your final revision notes. Along with that, if you want to add something more to it, you can modify accordingly. Okay, the session will be there on YouTube, and you will be able to revise it every now and again to just be consistent in your conceptual clarity of the topic. So without wasting time, let's start the session. So in this topic, the first thing which we need to understand is what is final dividend and what is interim dividend. So final dividend is been declared in AGMs, whereby interims are declared between two AGMs. Next, proposal. Who is proposing dividends? So final dividend and interim dividend both have been proposed by board of directors. However, when it comes to declaration of dividend, who declares final dividend? It's members. Who declares interim? It is board of directors. यहाँ पे हम ये सीखते हैं कि declaration can be less than the rate proposed or equal to it, but members cannot increase the rate. Conclusion ये आता है कि approval लगेगा AOA में क्या नहीं. Yes, you need approvals in case of interims of AOA, but not in case of final dividend. I hope the concept is quite clear. We are into fast track, so we will be covering up to that extent only. Moving further, guys. Next stuff coming up here is source. So what is the source of interim? So what is the source of dividend according to section 123? They have said it can be current year profits, it can be free reserves and surplus, and it can be money provided by CG or SG as in persons of guarantee given by them. What has to be set off for covering up the profits? They have said you have to set off the past year losses which are not provided for, along with it unprovided depreciation of earlier years. ये set off होने के बाद जो profit बचता है, that is your true profits. Depreciation भी workout करना जरूरी हो जाता है, but not as per your system. It has to be as per schedule 2. And do you have to transfer anything to reserves or not? It says that it's your choice to transfer to reserves. It means transferring to reserves is completely optional. Prohibition and declaration of dividend. तो ये कहता है कि 123 को कंटिन्यू करूँ आगे. इट सेज दैट कि अगर आपने आपके डिपॉजिट्स उसके इंटरेस्ट के रिसीविंग कंप्लायंसेस नहीं किए हैं या उसके रीपेमेंट के कंप्लायंसेस नहीं किए अंडर सेक्शन 73 एंड 74 ऑफ द एक्ट, टिल द टाइम यू सॉल्व इट, टिल द टाइम टू रीपे इट एंड कंप्लाई, आप क्या नहीं कर सकते, आप डिविडेंड को पे या डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं. आई होप दैट इज फाइन. Now if you are trying to compare this, do I need to transfer any to reserves or not? So the law says no, it is not compulsory, it's optional. But the moment you start using your source as reserves instead of profits, आपके पास reserves से आप डिविडेंड देना चाहते हो तो आपको रूल 3 compliance करना पड़ेगा. And rule 3 says that the rate at which you give dividend should not be more than average of last 3 years. मतलब लास्ट 3 इयर्स के एवरेज रेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका रेट अगर आप रिजर्व से डिविडेंड देना चाहते हो. नंबर 2, जो आप अमाउंट ड्रॉ करोगे, दैट अमाउंट ड्रॉन शुड बी मैक्सिमम 1/10 ऑफ पेड अप एनएफसी, सॉरी पेड अप एंड फ्री रिजर्व्स ऑफ द कंपनी, और वो भी एज पर लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट फिगर्स. और अमाउंट जो आपने ड्रॉ किया उसको पहले आपके लॉसेस जो है करंट ईयर के उसको सेट ऑफ करने को यूज कर लो. और द लास्ट कंडीशन इज कि आपका जो रिजर्व्स अकाउंट है उसमें जो मिनिमम बैलेंस बचना चाहिए आफ्टर विड्रॉल, मतलब ओपनिंग रिजर्व्स यहाँ पे है वो माइनस अमाउंट विड्रॉन, उसके बाद जो बचता है वो मिनिमम कितना होना चाहिए, 15% ऑफ पेड अप कैपिटल होना चाहिए. Compliance of all this 4 has to be happening. Number 1, rate not more than average of last 3 years. Maximum withdrawal should not be more than 1/10 of paid up NFR. Amount used shall be first written off to set off current losses, and the minimum balance has to be kept is 15% of paid up. अब ये 4 सिचुएशन को अप्लाई करने के लिए वी हैव टू सिलेक्ट द अमाउंट व्हिच शुड बी लिस्ट ऑफ ऑल 4. इसके लिए मैंने आपको एक एग्जांपल लिखवाया आपके नोटबुक्स में, यू कैन रेफर टू दैट आल्सो. इसका मिनिमम वैल्यू शुड बी योर मैक्सिमम अमाउंट व्हाट यू कैन पे. चारों का लीस्ट वैल्यू शुड बी द मैक्सिमम अमाउंट व्हाट यू कैन पे अंडर रूल 3. मूविंग फर्दर, हाउ डू डिस्ट्रीब्यूट सर in terms of distribution, first you have to create a deposit in a separate bank account within 5 days of declaration.
वो होने के बाद यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू कैन नॉट पे इन काइंड और रोकड़ा, यू हैव टू जस्ट पे इन चेक, वॉलेट और इलेक्ट्रॉनिक मोड लाइक आरटीजीएस, एनईएफटी। टू whom do you have to pay? to registered shareholders और उसके बैंकर्स, ठीक है। दिस इज 123 फॉर योर। कमिंग टू 124, 124 के अंदर इट इज रिगार्डिंग अनपेड डिविडेंड अकाउंट। इट सेज दैट कि जितना भी डिविडेंड अनपेड रहा, अनक्लेम रहा फॉर 30 days आफ्टर डिक्लेरेशन, तो फिर वो जो अनक्लेम और अनपेड रहा है फॉर 30 days वो सबको कहाँ डालना पड़ेगा? इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट मेंटेन इन अ शेड्यूल बैंक which you call it as which account? Unpaid dividend account. Now time limit to do so is 38 days के बाद next 7 days, that is within next 7 days, that is by 37th day you have to transfer the value of money which is unclaimed or unpaid into separate account in a scheduled bank called unpaid dividend account. जितना आपने डिले किया ट्रांसफर करने में, that amount has to be chargeable to an interest at the rate of 12% per annum. नाउ द मोमेंट ट्रांसफर, हाउ डू पीपल नो कि मेरा डिविडेंड था जो मैंने क्लेम नहीं कर पाया हूँ, ये मेरा डिविडेंड था जो मेरा पे नहीं, मुझे मिला नहीं। यू हैव टू मेंटेन अ स्टेटमेंट रिगार्डिंग विद रिस्पेक्ट टू अनपेड डिविडेंड। दैट स्टेटमेंट विद इन 90 days ऑफ डिक्लेरेशन आपको आपका स्टेटमेंट जिसमें नेम, एड्रेस, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अनपेड टू एवरी पर्सन, उसका एक लिस्ट बना के आपके वेबसाइट पे, कंपनी की वेबसाइट पे और गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे अपलोड करना है। अगर आपकी कोई वेबसाइट नहीं है तो इट्स ऑप्शनल, आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट से अपलोड करना ही करना है। बट टुडेज वर्ल्ड में एवरी कंपनी हैज इट्स ओन वेबसाइट्स, दैट समवन एवरीवन नोज इट क्वाइट क्लियरली। नेक्स्ट, अगर ऐसा नहीं, अगर यहाँ पे वंस यू ट्रांसफर टू यूडीए, आफ्टर दैट इफ डिविडेंड रिमेन्स अनपेड फॉर 7 years इन यूडीए, तो आपकी डिविडेंड ऑन यूडीए इज बीन पेंडिंग फॉर 7 years, इन दैट सिचुएशन इट शैल बी ट्रांसफर्ड टू आईपीएफ, मतलब इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। विद इन हाउ मेनी टाइम्स सर? 7 years के बाद यूडीए में पैसा जो पड़ा है वो इंटरेस्ट के साथ आईपीएफ में जाएगा, एंड यू हैव टू जस्ट फर्निश टू आईपीएफ द डेटा कि पैसा किसका है, किसके नाम का है, कितना है, और उसके बाद जिसका भी पैसा था वो कभी भी किसे क्लेम कर सकता है? आईपीएफ में। सेक्शन 125 आईपीएफ है, वो रिफंड क्लेम कर सकता है फ्रॉम आईपीएफ। फिर ये कहता है कि अगर डिविडेंड क्लेम करने के लिए कुल 7 years तक कंसेक्यूटिव कभी आया ही नहीं है कोई, for 7 continuous years, there is no one who has claimed dividend from the company, then such a shareholder's shares shall be directly be transferred in the name of IPF. मतलब अगर मैंने 7 साल तक कोई क्लेम नहीं किया कंपनी में, in that situation my shares will be in the name of IPF. So मतलब मेरे शेयर चले गए, yes, लेकिन क्या मुझे वापस मिल सकते? Definitely yes, once you take it, once you are in India or once you are aware of it, you can claim it back again. So मैं मर गया, मेरे बच्चों को चाहिए तो वो भी ले सकते हैं इनहेरिटेंस में भी। Next section what we're trying to target is section 127. In 127 what we see is कि अगर कंपनी ने एक्चुअली डिविडेंड पे ही नहीं किया, दैट इज सेक्शन 127 के हिसाब से डिविडेंड रिमेन अनपेड फॉर 30 days फॉर ऑल पीपल, मतलब पे ही नहीं किया किसी को, इन दैट केस देयर इज अ पनिशमेंट, एंड पनिशमेंट इज फॉर 2 people here. One is company as an artificial person, number 2 is directors who are known to that. डायरेक्टर्स के लिए इन्होंने बोला है 2 years imprisonment सख्त सजा, number 2 1,000 rupees per day for penalty for each default. Number 2, for company it shall be liable at interest rate of 18% per annum. You heard it right. अगर डिविडेंड डिक्लेयर करने का पे ही नहीं किया है तो इट्स इंटरेस्ट इज ऑफ 18% टिल द टाइम यू पे। बट अगर आपने पे किया है और सिर्फ जिसके अनक्लेम्ड रहे, जो रिसीव नहीं कर पाया, जिसका अकाउंट डिटेल्स रॉन्ग था, एड्रेस रॉन्ग था, ऐसा कुछ था, डिस्प्यूट में था, तो फिर वो लोगों का डिविडेंड जो होगा दैट हैज टू बी ट्रांसफर टू यूडीए, और वो यूडीए ट्रांसफर नहीं किया है तो उसका इंटरेस्ट रेट 12% है। मतलब जानबूझ के किसी को भी डिविडेंड नहीं दिया तो 18%, लेकिन जिसको डिविडेंड दिया है और जो लोग अनक्लेम्ड कर जो क्लेम नहीं पाए उनके लिए कितना रेट है? 12%। फिर कहता है इन विच सिचुएशन इवन इफ कंपनी डज नॉट पे डिविडेंड इट इज फाइन। तो उन्होंने 5 रीजंस बोले हैं। There will be no penalty to company as well as to directors. Number 1 is operation of law because of some court's intervention or because of insolvency, etc. Number 2 is because of directions given by whom? Shareholders to company, and that directions company was not able to follow, and company has informed the same to directors to the shareholders that we cannot follow your directions, we are sorry. तब company liable नहीं होगी even though they have not paid as per the directions. Number 3, lawfully adjust करना. There's some calls which has not been paid by the shareholder and company get dividend. तो कंपनी ने क्या किया, वो कॉल के सामने डिविडेंड एडजस्ट कर दिया, तो इसमें लॉ क्या कहता है? देन इट इज फाइन, यू डोंट हैव टू पे डिविडेंड। नंबर 4, देयर इज अ डिस्प्यूट, भाइयों के बीच में झगड़ा चल रहा है एंड डिस्प्यूट है कि किसका डिविडेंड किसका होगा, बड़े भाई का, छोटे भाई का, एक्सेट्रा। दैट टाइम ऑल्सो इफ यू डोंट पे डिविडेंड इट इज फाइन। एंड नंबर 5 इज द रीजन फॉर नॉन पेमेंट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ शेयरहोल्डर्स मिस्टेक,
not because of company's mistake. ये 5 reasons में there will be no penalty under section 127 to the company and directors. However, आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये reasons अगर dividend नहीं दिया है, at least company has to transfer such money to which account? Unpaid dividend account में transfer करना पड़ेगा, और वो नहीं किया तो there will be liability of how many percent? 12% to it, because company को यहाँ पे penalty लगेगा नहीं. But जानबूझ के सब चीज बराबर होने के बावजूद अगर पे नहीं किया, then we say that it is liable to 18% of interest. ठीक है. Next section is section 126, and in 126 what we learn कि in which situation the rights of shareholders, that is dividend, bonus और right issue, ये जो rights होते हैं उस rights का क्या होगा in a particular situation. What is the particular situation here? कि the transfer deed is delivered to company for registration by the buyer, that we call as transferee. But before the company registers the share in the name of transferee, what happens? Before it is delivered, but it is registered in the name of transferee, what happens? Law says that the thing what happens here कि उसके बीच में कंपनी डिक्लेयर्स डिविडेंड. दैट इज अगर फर्स्ट को बायर ने सबमिट किया पेपर्स के मेरे पास में शेयर्स कर दो, मैंने शेयर्स खरीद लिए एंड कंपनी से ओके इट विल टेक सम टाइम, इट इज कैन नॉट बी डन इमीडिएटली, और 9 दिन के बाद कंपनी ने क्या किया, रजिस्टर किया, तो 10 तारीख को किसके नाम पे हो गए, बायर के नाम पे हो गए, और फर्स्ट से लेकर 10 के बीच में एज पर रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी इट इज इन द नेम ऑफ सेलर, बट बायर हैज ऑलरेडी सबमिटेड पेपर्स फॉर अपडेशन. In this case, if dividend is declared, then it cannot be directly paid to the buyer, that is transferee. The dividend in relation to such amount shall be transferred to which account? Unpaid dividend account, unless the transferor, the seller is authorizing the company कि आप dividend किसको दे दो, ट्रांसफरी को दे दो. वैसे ही डिविडेंड के बदले अगर राइट्स इशू होगा या बोनस होगा, वो भी सेम इफेक्ट रहेगा. मतलब डिविडेंड्स का, राइट्स का, बोनस इफेक्ट क्या रहेगा, अगर ये 2 डेट्स के बीच में, फर्स्ट और 10 के बीच में, फर्स्ट को अप्लाई किया, 10 को रजिस्टर किया, उसके बीच में अगर क्या होता है, उसके बीच में अगर डिविडेंड दिया जाता है तो डिविडेंड किसका होगा, किसी का नहीं, वो यूडीए में जाएगा, जब तक अप्रूवल किसकी ना आ जाए, ट्रांसफर की आ जाए. दैट्स इट. नेक्स्ट सेक्शन इज 125 आईपीएफ. तो यहाँ पे हमको सिर्फ ये देखना है कि आईपीएफ अकाउंट किसका है, तो गवर्नमेंट का है, एंटिटी बनाई है. आईपीएफ में अंदर क्या आएगा और जाएगा क्या, तो आप देखोगे क्रेडिट्स में क्या आएगा, तो मैच्योर डिपॉजिट्स, डिबेंचर्स, डिविडेंड, इंटरेस्ट, प्रेफरेंसेस, डिविडेंड रिमेनिंग अनपेड फॉर 7 years is transferred to IPF. Government grants, government donations, income from investments in made from IPF account. IPF ओल्ड अकाउंट 1956 का अकाउंट वो भी यहाँ पे आएगा, और जो भी यूडीए में पैसा पड़ा है यूडीए में, वो भी पैसा 7 years के बाद कहाँ जाता है, आईपीएफ में जाता है. So to understand this, this is the amount which goes to IPF. What can be debited from IPF? आईपीएफ से इन्वेस्टर अवेयरनेस के लिए, इन्वेस्टर के एजुकेशन के लिए, इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन के लिए. डिसगॉज अमाउंट मतलब जो अमाउंट समझो कि जो अमाउंट गवर्नमेंट ने या उसके अथॉरिटीज ने क्लेम किए फ्रॉम द पीपल हु हैव डन फ्रॉड, वो अमाउंट डिसगॉज किया, और वो किसको पे किया, डिसबर्स किसको किया, अफेक्टेड पीपल जिसको लॉस हुआ. ये हमने आपको सिखाया था कि जो पैसा कंपनी के कोई बंदे ने लॉस करके स्टॉक मार्केट में किसी का लॉस करवा के खुद गेन किया, तो जिसका गेन हुआ उसे पैसा वापस देने को डिसगॉज कहते हैं, और जिसका लॉस हुआ उसे वापस देने को डिसबर्समेंट टू लॉस मेकिंग पीपल वो डिसबर्स किया जाता है. दैट इज डिसबर्समेंट डिसगॉज अमाउंट कमिंग फॉर द रिइंबर्समेंट ऑफ लीगल एक्सपेंसेस. क्लास एक्शन सूट्स की यहाँ पे बात होती है. क्लास एक्शन सूट्स में सब शेयर होल्डर्स मिलकर किसी कंपनी पे केस करते हैं, तो साथ में केस करने को हम क्लास एक्शन सूट कहते हैं, और उसके लिए जो लीगल एक्सपेंस हुआ शेयर होल्डर्स को लॉयर रखने का एक्सेट्रा, वो हम पैसा कहाँ से क्लेम कर सकते हैं वापस, हम आईपीएफ. तो इन्वेस्टर्स के लिए तो था आईपीएफ, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन, तो उसके लिए जो खर्चा वो हम किसको कहाँ से वापस ले सकते हैं, आईपीएफ से. और लास्ट पार्ट, जिन्होंने भी डिविडेंड यहाँ पे, जिनका भी डिविडेंड डिपॉजिट यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है आईपीएफ में, और वो वापस उनको क्लेम करना है, तो वो यहाँ पे रिफंड्स क्लेम कर सकते हैं. तो दिस इज रिगार्डिंग योर क्रेडिट्स टू आईपीएफ एंड योर डेबिट्स टू आईपीएफ. ये फंड मैनेजर कौन करता है, सीजी अपॉइंट कर एक चेयरपर्सन को, एक सीईओ को, और मेंबर्स नॉट मोर देन 7. ऑडिट ऑफ अकाउंट एवरीथिंग इज डन बाय सीएजी, कॉपी जाता है सीजी को, और फिर दोनों पार्लियामेंट हाउसेज में ये ले डाउन हो जाता है. आता है 123 एज इंटरिम डिविडेंड का सबसेक्शन 3 में आता है कि सोर्स क्या है, प्रॉफिट्स एंड पास्ट रिजर्व्स. रेट क्या होना चाहिए, तो रेट इन्होंने कहा है कि प्रॉफिट्स हो तो आपका कोई भी रेट हो सकता है इंटरिम डिविडेंड देने के लिए, रेट कैन बी एनी रेट. बट अगर कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में लॉस किया है तो उसका जो रेट होगा दैट शुड नॉट बी ग्रेटर देन एवरेज ऑफ 3 फाइनेंशियल ईयर्स, नॉट मोर देन एवरेज ऑफ 3 फाइनेंशियल, दैट विल बी द रेट. अगर पहले क्वार्टर में लॉस हुआ है तो प्रॉफिट्स में कोई मिनिमम लिमिट नहीं है. ये मैंने आपकी चीज़ों में ऐड किया है, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ लॉ बट आई जस्ट एडेड इट फॉर योर क्लैरिटी.
अगर डिविडेंड प्रॉफिट से नहीं कैपिटल से दिया गया होगा तो लायबल कौन होगा? लायबल विल बी डायरेक्टर्स who are a party to it. Number 2, अगर directors liable हो गए to pay to the company the extra amount which is being paid out of capital, then जिनको dividend गया है and they were aware of it, capital से dividend pay हुआ है, they will have a right, directors will have a right to claim from such members the entire money. It means that अगर directors ने dividend capital से दिया है तो director will be liable to company, और जिस members को पता था कि जो dividend दिया जा रहा है वो capital से है, in that situation such members will be liable to pay to directors that money, to directors and directors to company. एंड मोर इम्पोर्टेंटली अगर डायरेक्टर्स ने प्रॉफिट्स आगे जगह कमा के दे दिया तो लायबिलिटी डायरेक्टर्स की वो माफ हो जाएगी. These are three points which has to be remembered. Next one is, can dividend be revoked? Dividend one declared, whether it's interim or final, it cannot be revoked. But two situations it may be revoked. One is if the transaction is ultra vires, and number 2 is company ceases to be going concern. In these two situations, the dividend so given may be revoked. Otherwise, dividend given cannot be revoked. By this series, guys, this is the shortest revision of in 16 minutes of the entire topic. Now, in this case, we have taken six hours to finish this chapter. 6 hours. वो 6 hours को हमने convert किया into 16 minutes. 360 मिनट को it's like we have finished off in approximately 5% of timeline. So I'll be telling you two things. Please copy it in your notebook. Please review me back on YouTube, yeah, any platform what you want. Just tell me how do you like this session, how do you like this flow charts. It will help me out to improve further to that. Okay? You are basically the judges to it. And please see this lecture regularly. I'll be uploading on YouTube. This every month if you see it twice, you are spending just 30 minutes for the same, but your concepts will be retained in a best possible manner. Okay guys, this is how we finish it off. And more importantly, section numbers: 123 conditions to pay the dividend, 124 UDA, 125 IPF, 126 dividend to be held in abeyance, and 127 failure to pay dividend within 30 days. उसका रूल नंबर आपका रूल पता है, you are using rule 3. Rule name is company's dividend and payment dividend declaration of dividend and payment of dividend rule 2014, and chapter number 8. I hope you enjoyed the session. Kindly comment to it if you like it. Thank you. See you. All the best.